So students, so I think you all have noted it down, the accounting equation, meaning of accounting equation. Just I am repeating it again. You can note it down or you can take the screenshot. So accounting equation is the base. Accounting equation based is पे dual aspect. Just we have to focus. Dual aspect means each and every transaction having two-fold effect. Okay? जितने भी business के transactions होते हैं उसके two aspect होते हैं, right? So one is to be debited and other one is to be credited according to their role. But right now we are not going to study debit and credit. Just we are going to study accounting equation. So as it is saying that it is based on dual aspect concept of accounting. Accordingly, or according to this, the assets of business. Assets. What is the meaning of assets? Already I have taught you all in the second chapter, right? So assets, liabilities, capital, everything I have taught. So just you have to understand. So who is new, very new for this topic, this words, assets, liabilities, capital, they can check the PDF of second chapter. Okay. So accordingly, these assets are the assets of business are always equal to total of its liabilities and capital, right? So total of liability और capital यानी कि add कर देते हैं. We can see here by the equation form, assets is equal to liability plus capital, right? So हमारा कभी भी कोई भी transaction, whatever the transaction in happening in the business between two people and having the monetary value, it will affect our accounting equation. But mind it, must be noted that the total of assets must be equal to total of liability and capital. So each and every transaction must prove that our accounting equation is going in a correct way or follow the rules and regulations. Okay. So students, so note it down. We can express this as A is equal to L plus C, right? Here, liabilities mean liabilities is equal to amount due to outsider or creditors. Okay, so liabilities means amount due to outsider. Capital means owner's capital. Owner's capital means the money invested by owner. Okay, or it is alternatively known as owner's equity. Owner's equity, it is also known as. Now assets. Assets is, you know, कि assets means क्या होता है? Asset means total property of the business which we use in our business. You must know asset. There are two types of asset: current asset and non-current assets. It refers to all those items or amount which is of business and due from outsiders or debtors. Debtors, you know, debtors को हम लोग यहाँ पे कस्टमर भी लिख सकते हैं. Okay, so students, debtors is also known as customer to whom we have sold goods. So assets क्या होता है? It refers to all those items or amount which is of business like plant, machinery, building,
एक्सेट्रा, एंड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम आउटसाइडर्स, जो हमें दूसरे लोगों से लेना है, और ड्यू फ्रॉम आउटसाइडर्स आर डेटर्स और कस्टमर, any amount due. देखो, it is asset is just reverse, asset is just reverse, liabilities क्या होता है, amount due to outsider और creditor, assets क्या होता है, amount due from, यहाँ क्या है, due from है और यहाँ है due to, right? So due to outsider is the liability, due from outsider is an assets. Okay, so note it down, students. So now this is the accounting equation, meaning you have understood the equation you have seen here, asset is equal to liability plus capital, and the in abbreviation form A is equal to L plus C, or C plus L is equal to A, whatever you can write. LHS must be equal to RHS. Okay. Now liabilities means the amount due to outsider or creditors, and now capital means owner's capital or owner's equity. Assets means which the assets are the items which are in the possession of the business, or the amount due from outsider or customer. Okay, so now I'm going to show you how to prepare balance sheet, or how this accounting equation put in the balance sheet format. Okay, so just I am erasing this. So you must know how to prepare balance sheet, or what is the format. Already I have taught you all people in the second chapter. Everything I have taught, that's why I was saying, just read it carefully. So here just I am going to show you how to prepare balance sheet, or what is the format of balance sheet. So balance sheet is to be prepared at the end of the accounting period. So we will write here as at. Generally we prepare it at the end means 31st March. As at 31st March 20, अब जो भी डेट होगा ईयर का नाम होगा 2000. वीडियो साफ नहीं समझ आ रहा है. Yes, Prince. So this is the balance sheet, how to prepare. Okay, and now you can see here, this is the format, okay, of balance sheet, right? यहां पर आप रुपीस लिखेंगे, एसेट्स, या राइट हैंड साइड होगा रुपीस, लायबिलिटीज. So देखो, this is the format of balance sheet, right? So ये format है आपका balance sheet का, और right hand side पे we will put the assets, and left hand side we will put liabilities. Okay, so here you can see total of asset must be equal to total of liabilities. तो यहाँ पर हम सबसे पहले liabilities में क्या लिख रहे हैं, कैपिटल. ओके, कैपिटल में लिख रहा हूं, और आप देखो कि दिखना चाहिए सही से, CAPITAL, capital we have written here. Then after liabilities, liabilities में क्या होता है, so liabilities में for example creditors और loan. ओके, क्रेडिटर्स और लोन, राइट? तो ये है आपका बैलेंस शीट में. आपने देखा सी हो गया और एल हो गया. एल में क्या होता है, क्रेडिटर और लोन, द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, जो भी हमें दूसरे को पेमेंट करना है, या किसी से मैंने उधार लिया है
तो वो सब लायबिलिटीज में आता है। और कैपिटल क्या होता है, वो ओनर्स फंड। एसेट्स में आप लोगों का देखिए क्या आएगा, तो एसेट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, कैश, बैंक, ओके, डेटर्स एंड स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, ओके। सो आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स भी है यहाँ पे। तो अब हम लोग ये क्या करते हैं कि टोटल करते हैं। ये टोटल यानी कि ये सारा तुम्हारा क्या है, ये एसेट्स है, और ये सब तुम्हारा लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज इंक्लूड्स, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूड कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल मींस इंटरनल लायबिलिटी, एंड ओनली लायबिलिटीज है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। और एसेट्स में करेंट और नॉन करेंट एसेट्स आता है। सम एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर, कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर। कि in left hand side we will write the liabilities, in which we will put the capital and other liabilities means amount due to outsider. And in asset side, cash in hand, cash at bank, debtors, whatever goods we have sold on credit. Now stock means goods which lies in hands unsold, and fixed assets which we use over a long period of time like plant, machinery, building, etc. Okay, so हम लोग ये करते हैं यहाँ पर। तो ये है आपके सामने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सो नोट इट डाउन फॉर्मेट, or you can take the screenshot also. So now see students, before starting to solution or before solving the question of accounting equation, first of all we must read the question thoroughly. हम लोग को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। Just after reading the question, we need to identify the number of assets. Asset may be cash in hand, cash at bank, furniture, machine, etc. Debtors वगैरह. Likewise, liabilities. Liabilities includes capital and other liabilities, that is payment to outsider or amount due to outsider. So first we read the question and what kind of asset and liability has been created. Then according we will prepare the column. So just I am giving one example. See here, Mr. Mr. Harsh started a business with cash rupees 2 lakhs. तो देखिए ये आपके सामने एक ट्रांजेक्शन है कि मिस्टर हर्ष इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 2 लाख. नाउ यू पीपल आर सिटिंग हियर, assume yourself as an accountant, not Harsh. अब हर्ष क्या है? हर्ष इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओके। और हर्ष बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो आप जो पैसा हर्ष अपने पास घर से ला रहा है कैश 2 लाख रुपीस, वो लाकर किसको देगा? बिजनेस में अकाउंटेंट के हाथ में देगा। और आप सभी लोग क्या हो? अकाउंटेंट हो, राइट। सो एज एन अकाउंटेंट आप देखो कि आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। आपके पास 2 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है। तो 2 लाख रुपया क्या है? कैश है। और कैश कहां जाता है? एसेट्स की कैटेगरी में, अभी भी मैंने बताया। और पैसा आ कहां से रहा है? बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू फोल्ड इफेक्ट। अगर कहीं से कुछ पैसा आ रहा है तो कुछ तो जाएगा हमारे पास, यानी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए हमारा। सो अब जा नहीं रहा है तो कहां से आ रहा है? या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। सो आपको ध्यान होगा कि ये पैसा मिस्टर हर्ष ला रहा है, और हर्ष जो भी पैसा लाएगा, आप देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड क्या होता है? जो पैसा लेकर आता है उसे कहते हैं कैपिटल। और कैपिटल किसका पार्ट है? इस साइड का। और कैश किस साइड का पार्ट है? इस साइड का। सो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट जो बनाते हैं सॉल्यूशन के लिए, आप देखो यहाँ पर होता है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर का कॉलम होता है। ये होता है ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का कॉलम होता है। उसके बाद कौन सा एसेट्स क्रिएट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में
कैश क्रिएट हो रहा है, राइट। और लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है या नहीं, तो लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर आप देखो कि ये फॉर्मूला होता है आपका या एसेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है, प्लस कैपिटल, यही होता है। अब आप देखो कि पहला ट्रांजेक्शन यहां पर क्या है, ये फॉर्मेट बना लिया हमने ऐसे, ठीक है। सो आप देखो कि यहां पर है कि बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश, रुपीज 2 लाख। थोड़ा सा अगर से ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2 लाख। यू कैन प्रिपेयर ऑन योर नोटबुक आल्सो। सो अब आप बताइए कि यू आर एन अकाउंटेंट, सो कैश से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए कैश आ रहा है, तो कैश में आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे 2 लाख रुपीज। और ये पैसा आ कहां से रहा है, ओनर के पास से, तो ओनर का पैसा क्या होता है, कैपिटल, तो कैपिटल में 2 लाख रुपीज प्लस हो जाएगा। So now you can see your total of asset is 2 lakh and total of liability and capital is 1 lakh। यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। सो आपने देखा कि आपका टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल हो रहा है, राइट। अब हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा आगे समझने के लिए इसमें एक ट्रांजेक्शन और ऐड करेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए, राइट। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन स्टूडेंट आई हैव रिटेन हियर, bought goods of ₹50,000 for cash। सो अब क्या हुआ, पहले तो हमने 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, अब 50,000 रुपए से हमने क्या किया, गुड्स परचेस किया। सो अब आप देखो कि गुड्स क्या होता है, स्टॉक होता है, तो हम यहाँ पर एक स्टॉक का कॉलम बना लेंगे। गुड्स को हम लोग स्टॉक के नाम से या गुड्स के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ एक गुड्स का कॉलम बना लिए। अब देखिए आप लोग, पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या था, ये कुछ नहीं था यहाँ। अब दूसरा ट्रांजेक्शन जो आता है वो कह रहे हैं गुड्स खरीदा 50,000 का, तो यहां लिखेंगे बॉट गुड्स ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए का गुड्स हमने परचेस किया, ठीक है। तो अब इस 50,000 रुपए का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा, सो आप क्या हो, अकाउंटेंट हो, आप गुड्स जो खरीदा, ये मानकर चल रहा है कि आप खरीद रहे हो बिजनेस के बिहाफ से, तो आपने गुड्स खरीदा 50,000 का, तो आपके पास गुड्स तो आएगा लेकिन जेब से पैसा जाएगा, तो यहां पैसा माइनस करेंगे 50,000, ठीक है। ये 50,000 रुपए हमने माइनस कर दिया, और प्लस कहां करेंगे, स्टॉक वाले हेडिंग के अंदर 50,000 रुपया। लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, हमारे पास 50,000 का गुड्स आ रहा है और हमारे जेब से 50,000 रुपया जा रहा है। तो अब आप अगर इक्वेशन बनाते हो न्यू, सॉरी ये कट गया, ठीक है, आप देख लो, यहां अगर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन आप देखो, तो न्यू इक्वेशन में क्या आ रहा है, यहाँ 2 लाख में से ये 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर कैश 1,50,000, राइट। फिर गुड्स कितने का है, 50,000 का है, और यहाँ पर लायबिलिटीज में कुछ नहीं है, कैपिटल आपका 2 लाख है। सो अब आप चेक करो, 1,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 2 लाख, राइट। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे, हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमेशा इट विल मेक प्रूव दैट टोटल ऑफ एसेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज, एंड इट इज सेइंग गुड्स costing rupees 20,000 was sold for rupees 25,000, यानी इट मींस कि 20,000 का गुड्स हमने 25,000 में सेल किया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, गुड्स वही ट्रांजेक्शन कॉपी कर देना है, कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold, ठीक है, फॉर
₹25,000, राइट। सो अब बताइए, आपने 25,000 का गुड सेल किया, इट मींस यू विल बी रिसीविंग ₹25,000 क्योंकि आपने कैश में बेचा है। सो आपके पास पैसा आएगा तो कैश में ऐड कर देंगे 25,000, राइट। लेकिन आपने जो 25,000 रिसीव किया और बदले में आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, लेकिन वो गुड्स कितनी वैल्यू का जा रहा है, 20,000 का। सो आपका 20,000. हाँ, गुड्स माइनस हो जाएगा, गुड्स वाले कॉलम से स्टॉक से माइनस करेंगे 20,000, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का। तो प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर को। ओनर का पैसा कहाँ है, यहाँ पर कैपिटल। Capital. तो कैपिटल में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे, अगर से यहाँ पर न्यू इक्वेशन अगर हम लोग क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं कि है कि नहीं हम लोग का इक्वल, तो न्यू इक्वेशन, राइट। सो न्यू इक्वेशन में देखते हैं 1,50,000 पहले से था कैपिटल, 25,000 कैश, सॉरी कैश था और 25,000 का सेल किया, तो टोटल 1,75,000, 5,000. राइट। अब यहाँ 50,000 था और 20,000 माइनस करेंगे, सो इट विल बी 30,000. 30,000. लायबिलिटीज इज कुछ नहीं चेंज हुआ है, यहाँ उसी तरह रहेगा, और 2 लाख में 5,000 ऐड कर दिया, प्रॉफिट होता है 2,05,000. माइनस होगा। सो हियर अब आप चेक करोगे 175 और 30,000, तो 2,05,000 और इधर भी 2,05,000 ही आ रहा है। इट मींस कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो रहा है कि टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल, राइट। सो यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आज तक का है। कल बाकी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप देख लो, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो।